છે નકુલ? હા યસ સર યસ સર એના 3 ગ્રુપ જ કેટલાના આવ્યા આવ્યા છે. ને એક કામ કર, એક વખત છે ને હજી રિમાઇન્ડર આપી દે અને કહી દે કે આજના દિવસમાં સબમિટ કરી દો. અધરવાઇઝ પછી જેટલાના નામ બાકી રહેશે ને એ સર એની રીતે ગ્રુપ બનાવીને આપી દેશે, એમાં કોઈ ચેન્જીસ નહીં થાય. સર એક કામ કરો ને, તમે લાસ્ટ લેક્ચર આપણો છેલ્લો લેક્ચર આવડા લેક્ચર પૂરો થાય ને હા, ત્યાં તમે સર કહી દો એકવાર રિમાઇન્ડર થોડા જેટલા આવ્યા સ્ટુડન્ટ. આખું ડન ડન કહી દઈશ સર. પ્રેઝન્ટેશન માટે ગ્રુપના નામ દેવાના છે. SWOT એનાલિસિસ તમારે 2 કંપનીનું કરવાનું છે. તમે જો પોર્ટલમાં અપલોડ કર્યું છે ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં, ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો. સર આ તો મારા સબ્જેક્ટ સ્પેસિફિક ઓનલી. જો તમે નહીં બનાવો ને તો છેલ્લે હું બનાવી દઈશ. આજે નકુલ ને તમારે બધા નામ આપવાના છે. 7 થી 10 જણા એક ગ્રુપમાં. 7 થી 10, મિનિમમ 7, મેક્સિમમ 10. સર હું તમને બધા નામ કમ્પ્લીટ કરીને આપું કે કેવી રીતના આપું? આજનો દિવસ વેઇટ કર, હું હમણાં છેલ્લે છે ને પાછું એનાઉન્સમેન્ટ કરું છું. પછી આજના દિવસે બધાને આવી જાય ને પછી મને આપજે. જેટલાના બાકી હશે ને એટલાના મારી રીતે. હું તમને શું કહું, આપણે જે 8 જણાના ગ્રુપ છે ને, જે 8 જણાના ગ્રુપ 2 કંપની, એમાં અવાજ સર એમાં 4 જણાની એક કંપની અને બીજા 4 જણાની કંપની એવી રીતના નામ આપું કે ના, એવું 8 કઈ 8 ના કરવાની નામ? જરૂર નથી. એવું કઈ અચ્છા, કરવાની 8 જરૂર 8 ના નામ નથી. ને 2 કંપની. અચ્છા, ઓકે. ટોટલ મારે જે ગ્રુપ હોય ને, આખું ગ્રુપ, જેમ કે ગ્રુપ નંબર 1, સમજી ગયો સમજી એમાં ગયો. 8 થી 10 જણા હોય અને 2 કંપની, બસ પૂરો. એ કંપની એને જેમ કરવું હોય, જેને જે કંપની લેવી હોય they can take. યસ યસ, ઓકે સર, ઓકે. મિનિમમ 7, મેક્સિમમ 10. So guys, once again, very good morning to all my dear students. Here we go with the disclaimer. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial, only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video should be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. So guys, yesterday we have done with the tangible assets, intangible assets and organizational capabilities as far as internal analysis is concerned. Now we'll move to the next topic, that is what makes a resource valuable.
आपके पास जो रिसोर्सेज है, सभी कंपनी के पास रिसोर्सेज है, कुछ के पास काफी ज्यादा है, कुछ के पास काफी कम है. एवरी कंपनी डज हैव द यूनिक बंडल ऑफ रिसोर्सेज, राइट? तो अब वो रिसोर्सेज जो है वो वैल्यूएबल है कि मॉडरेट है कि बिलो एवरेज है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जिसके लिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है. So on the basis of certain parameters, you can decide whether your resources are valuable or not. If your resources are valuable, then definitely you will get above average return from the market. If your resources are moderate, then you will get the average return from the market. If your resources are very neutral, then you will get below average return on your investment, or you can say from your businesses. So now we'll see how you can consider that your resources are सो कम्पिटिटिव सुपीरियोरिटी. क्या आपके पास जो रिसोर्सेज है वो आपके कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की नीड बढ़िया तरीके से सेटिस्फाइड कर सकते हैं एज कंपेयर टू द कंपटीटर्स. एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा. ओला कार, जूम कार एंड उबेर कार्स जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब उसमें ओला जो है वो आपको मालूम है, उबेर जो है वो भी आपको मालूम है, बट जूम कार जो है वो शायद आपके नॉलेज में नहीं होगा इतना ज्यादा. इट इज बेसिकली देयर इन द महाराष्ट्र एंड साउथ रीजन में आपको जूम कार मिलेगी. ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड कार है जहां पे आपको सेल्फ ड्राइव करनी है और जो कार आपको चाहिए वो कार आपको मिलेगी. इफ यू वांट मर्सिडीज तो मर्सिडीज भी वो लोग अवेल करवाएंगे. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इज कि वहां पे चार्जेस जो है वो आवरली बेसिस पे है. आपने 5 घंटा कार इस्तेमाल किए तो आपको 5 घंटे के चार्जेस जो है वो पे करने हैं. वहां पे कोई शोफर नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं है, आपको अकेले ही खुद को ही वो कार ड्राइव करनी है. तो दिस इज व्हाट वी कैन से कंपीरियर सुपीरियोरिटी एज कंपेयर टू द ओला एंड उबेर. लोगों को जो चाहिए वो जूम कार दे रही है, and that's why we can say their resources are valuable as compared to the other companies. Then the second one is resource scarcity. क्या आपके पास जो रिसोर्सेज है वो सभी के पास है? अगर यस तो आपके रिसोर्सेज वैल्यूएबल नहीं है. क्या आपके पास जो रिसोर्सेज है वो काफी कम लोगों के पास है? देन यस इट्स वैल्यूएबल. एंड क्या आपके पास जो रिसोर्सेज है वो सिर्फ आप ही के पास है? देन यू आर द विनर इन द मार्केट. लेट मी गिव यू एग्जांपल. गल्फ कंट्रीज, क्रूड जो है वो पूरे दुनिया में ज्यादातर 90% क्रूड जो है वो गल्फ कंट्रीज के पास है. एंड दैट्स व्हाई दे आर एंजॉयिंग, दे आर टेकिंग द ग्रेट एडवांटेज ऑफ द सेम. तो उसके रिसोर्सेज जो है वो काफी वैल्यूएबल है. उसके रिसोर्सेज जो है वो पूरी दुनिया के लिए जरूरी है. रॉ मटेरियल है उसका जो दुनिया के लिए जरूरी है. दैट्स व्हाई दे आर एंजॉयिंग द फ्रूट्स. वो काफी आगे बढ़ रहे हैं. सो रिसोर्सेज जितने वैल्यूएबल होंगे, रिसोर्सेज जितने रेयर होंगे, रिसोर्सेज जितने आपके पास ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे मार्केट में बढ़ पाओगे और आपके कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड कर पाओगे. देन इनएमिटेबिलिटी. क्या आपके पास जो रिसोर्सेज है वो इजीली कॉपी किए जा सकते हैं?
क्या आपके पास जो रिसोर्सेज है वो इजीली एक्वायर किए जा सकते हैं? इफ यस, तो वो रिसोर्सेज वैल्यूएबल नहीं है। पर जो आपके पास रिसोर्सेज है वो इजीली कॉपी ना किए जाए, आपके पास जो रिसोर्सेज है वो इजीली एक्वायर्ड ना किए जाए, देन वी कैन से यस दोज रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल, जिसकी वजह से आपको मार्केट में बढ़िया बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। इन दैट विल हैव आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। आइसोलेटिंग मैकेनिज्म मतलब ऐसी चीज है जो आपके रिसोर्सेज को डिस्टिंक्ट लेवल पे ले जाते हैं, जहां पे आपका कंपटीटर उसको कॉपी ना कर पाए। सो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म मींस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक रिसोर्सेज डिफिकल्ट टू इमिटेट। जैसे कि मुंबई में जो ताज होटल है उसका लोकेशन, क्या उसको कोई कॉपी कर पाएगा? नो वन कैन कॉपी दैट। तो ये उसका एक ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्सेज है जिसकी वजह से टाटा ग्रुप को ताज होटल में से बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। आपको मालूम है ताज होटल में जो सबसे महंगा रूम है उसका पर डे का कॉस्टिंग कितना है? टाटा होटल्स और यू कैन से द ताज होटल्स एट मुंबई, मुंबई में जो है वो उसका जो प्रेसिडेंशियल शूट है उसका एक दिन का कॉस्ट है 18 लाख रुपीस, 18 लाख रुपए, 1.8 मिलियन रुपीस। 18 लाख रुपए जो है उसका प्रेसिडेंशियल शूट का एक दिन का रेंट है। एंड वहां पे जो सर्विसेज आपको मिलेगी इट विल बी अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। यू विल फील लाइक अ किंग। एंड डेफिनेटली जब आप 18 लाख रुपए पे करोगे तो किंग तो फील करना ही पड़ेगा ना। सो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके रिसोर्सेज को एकदम यूनिक बनाते हैं, जिसकी वजह से दूसरा कोई उसे कॉपी ना कर पाए। जैसे कि फिजिकली यूनिक रिसोर्सेज, वन काइंड ऑफ रियल एस्टेट लोकेशन दैट नो वन कैन कॉपी। आज पेरिस में डिज्नीलैंड है तो नो वन कैन कॉपी, ऑरलैंडो में भी है अमेरिका में, नो वन कैन कॉपी इट। सो ऐसे यूनिक लोकेशंस जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है वो आपका वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसका मेजॉरिटी इंपॉर्टेंस रहेगा आपके सक्सेस में। सो रिसोर्सेज आर वर्चुअली इम्पॉसिबल टू इमिटेट, जैसे कि रियल एस्टेट का लोकेशन, मिनरल के राइट्स, पैटर्न्स, ये कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। अगर कॉपी करेगा तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। जैसे कि कोका कोला का फॉर्मूला, पेप्सिको वाले ने कोका कोला के कई एम्प्लॉयज को फोड़ने की ट्राई की, लॉन्च देने की ट्राई की, काफी कुछ किया, बट वो फेल हुए। उसको वो फॉर्मूला मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि कोका कोला का फॉर्मूला सिर्फ 2 लोगों के पास ही है। एंड वो 2 लोग जो है वो इतने अलर्ट है कि दोनों कभी एक साथ प्लेन में मुसाफरी भी नहीं करते, क्योंकि अगर दोनों एक साथ चले जाएंगे तो क्या होगा। तो दे आर वेरी मच क्रिटिकल। इसके लिए की सक्सेस फैक्टर है। आज कोका कोला मार्केट में सक्सेसफुल है तो उसके फॉर्मूला की वजह से। देन पाथ डिपेंडेंट रिसोर्सेज लाइक सर्टेन चीजें जो ओवरनाइट नहीं बनती, जिसको बनाने में काफी टाइम लगता है, जिसको बनाने में काफी ज्यादा खर्चा लगता है, जो कॉस्टली है, जिसको मेंटेन करना भी कॉस्टली है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डेल कंप्यूटर। अर्ली 2000 में जब हम लोगों को इंटरनेट क्या है वो मालूम भी नहीं था, उस टाइम पे डेल कंप्यूटर कस्टमाइज पीसी इंटरनेट पे सेल करते थे। कस्टमाइज पीसी, कस्टमाइज पीसी डेस्कटॉप जो है वो इंटरनेट पे सेल करते थे। आज हम लोग ये परचेस कर रहे हैं ऑनलाइन, वो आज से 20 साल पहले सेल कर रहे थे। तो आप सोचिए कि उस टाइम पे उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कितना होगा, तो उसके लिए खर्चा भी इतना हुआ होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, गेटवे के लिए, पेमेंट के लिए, सभी के लिए। बट यस, उसको मेंटेन करना भी टफ है। जैसे कि कोका कोला का ब्रांड नेम, आज कोका कोला जो है उसमें 2 बार तो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे कंट्री की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर केस किया, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स निकलना उसमें से, एंड मेनी मोर थिंग। बट फिर भी आज भी कोका कोला ने अपना ब्रांड नेम जो है वो बना के रखा है। तो जो एक्सपेंसिव है, जिसको बनाने में काफी साल लग गए, मेंटेन करना भी एक्सपेंसिव है। अनदर वन दैट इज जॉनसन बेबी की रेप्यूटेशन। जॉनसन बेबी की रेप्यूटेशन मार्केट में काफी अच्छी है। कई सारे केसेस हुए कि स्किन डिजीज हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट फिर भी आज भी जॉनसन बेबी की मार्केट में रेप्यूटेशन बढ़िया है। उसको मेंटेन करना भी एक्सपेंसिव है। सो ऐसे पाथ डिपेंडेंट रिसोर्सेज अगर आपके पास कोई है तो वो वैल्यूएबल है, नो वन कैन कॉपी इट, and you can enjoy the great fruits of those for the longer term of period.
इन सेम टाइम आपके कस्टमर्स भी वहां पे सेटिस्फाइड होंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट वन इज कैजुअल एम्बिग्यूटी। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्चुअली इट्स कैजुअल। कैजुअल एम्बिग्यूटी मतलब धीरे धीरे आप मार्केट में इतना ग्रो हो रहे हो कि 3 साल के बाद अगर आपका कंपटीटर आपको देखेगा तो वो सोचेगा कि यार 3 साल पहले तो ये बच्चा था, आज इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया। तो मतलब द वे यू आर डेवलपिंग योर बिजनेस इज वेयर योर कंपटीटर्स फील दैट हाउ ही हैज डन इट विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, 3 years 5 years। पहले 100 करोड़ का टर्नओवर था, 3 साल में 500 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। हाउ दे हैव मैनेज इट। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप कैजुअल एम्बिग्यूटी बोल सकते हो कि आपका कंपटीटर सोचता रहे कि आप क्या कर रहे हो और आप मार्केट में से आगे बढ़ जाओ। इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे रॉकेट सेल्स कॉर्पोरेशन। अगर आपने मूवी देखी हो, रणबीर कपूर की मूवी है, अगर नहीं देखी है तो आपको देख लेना, काफी बढ़िया मूवी। देन द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक डिटीरेंस। मतलब प्लीज बी ऑनलाइन, प्लीज बी ऑनलाइन। સ્વિચ બધી ચાલુ છે। કનેક્શનમાં છે। બાજુમાં તો નેટ નથી ચાલુ। નેટ હા, નેટ નથી ચાલુ। ना ना अच्छी आ रही है। सो इकोनॉमिक डिटीरेंस मतलब आज मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है जिसके पास काफी ज्यादा पैसा है एंड वो ऐसे मार्केट में एंट्री करता है जो स्केल सेंसिटिव है। स्केल सेंसिटिव मतलब क्या है कि आज आप जो वो एसएस की पेन आती है 2.5 रुपए की, वो आप इस्तेमाल करते हो। अब वही पेन मार्केट में कोई नया प्लेयर आ जाता है और आपको 2.25 रुपए में देगा तो आप इजीली स्विच हो जाओगे। तीसरा कोई आएगा वो आपको 2 रुपए में देगा तो आप तीसरे वाले की पेन लेंगे।
एसएस की पेन जो है उसका सेल्स कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एंड पूरा एशिया जो है वो स्केल सेंसिटिव मार्केट है। स्केल सेंसिटिव मतलब जहां पे प्राइस, क्वालिटी, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, फीचर्स को ध्यान में रखते हुए लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो उसी हिसाब से अगर इकोनॉमिक डिटरेंस मतलब मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर आ जाए, लार्ज इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाए एंड वो सेम प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव रेट में सेल करना स्टार्ट कर देगा, तो पूरी इकोनॉमी जो है वो डिटरेंस मतलब बिगड़ जाएगी। ये रिलायंस जियो वही किया, 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब फ्री में दे दिया, बाकी की कंपनी अभी बंद होने की कगार पे आ गई है। सो रिसोर्सेज इन इमिटेबिलिटी, जो आप इजीली कॉपी कर सकते हो वो है कैश, कमोडिटी, जो आपके पास है इजीली कॉपी हो सकता है, कोई भी कॉपी कर सकता है। आपके पास कैश है, मेरे पास भी है, आपके पास कमोडिटीज है, मेरे पास भी है, इजीली कॉपी हो सकती है। कैन बी कॉपीड एंड कैन नॉट बी, जैसे कि आपकी कैपेसिटी, आज बिस्लरी है उसके पास काफी बढ़िया कैपेसिटी है, तो किनले जो है वो ट्राई कर रहा है कॉपी करने की, बट हो नहीं रहा है। इन फ्यूचर में भी हो सकता है बट अभी नहीं हो रहा। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बल्क प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, डिफिकल्ट टू इमिटेट, जैसे कि ब्रांड लॉयल्टी। आज मैं पेन जो है वो क्रॉस की ही यूज करता हूँ तो मैं क्रॉस की पेन ही यूज करूंगा। आज मैं वॉच जो है वो टीसो की पहनता हूँ तो मैं टीसो या रोलेक्स की वॉच ही पहनूंगा। ब्रांड लॉयल्टी वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। एक बार आपके दिमाग में फिट बैठ गया कि मेरे को एप्पल का आईफोन ही लेना है तो आप एप्पल का आईफोन ही लेंगे। तो ये ब्रांड लॉयल्टी है जो काफी साल लग जाते हैं कंपनी को कमाने के लिए। देन एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, ये भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप कितना भी कर लो बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बढ़िया एनवायरनमेंट है, आप अपने एम्प्लॉयज की केयर करते हो, तो ही वहां पे आपके एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे। आज नंबर 1 एम्प्लॉयर में है अमेजोन एंड गूगल, ये 2 वर्ल्ड के सबसे लीडिंग एम्प्लॉयर है, जहां पे एम्प्लॉयज जो है हाईली सेटिस्फाइड है विथ ऑलमोस्ट 0 एम्प्लॉय टर्नओवर। जो एम्प्लॉय जाता है उसको कंपनी वाले नहीं निकालते, अगर उसको जाना है तो वो शिफ्ट हो सकता है। सो दैट इज रियली वेरी नाइस। तो ये बनाने में काफी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को काफी बढ़िया एडवांटेज मिलता है। देन रेपुटेशन ऑफ फेयरनेस, ये भी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। जैसे कि टाटा ग्रुप की फेयरनेस का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊं। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एक यूनिट, सॉरी इंफोसिस का एग्जांपल है। इंफोसिस का एक यूनिट जो है वो न्यूयॉर्क में भी है, और वहाँ का जो सीईओ है उसने समहाउ कुछ किया होगा, तो किसी एक लेडी एम्प्लॉय ने उसके ऊपर केस किया था एक्सप्लॉयटेशन का, तो कंपनी ने वो सीईओ को वहां से निकाल दिया एंड लेडी को $10 मिलियन का कंपेंसेशन भी दिया। सो ये फेयरनेस है जो प्रूव करने में काफी टाइम लग जाता है एंड ये बनाने में भी काफी टाइम लगता है। ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी जो है वो ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांजेक्शन रखती है तो वो कॉस्टली हो सकता है, क्योंकि सभी ट्रांसपेरेंट होगा, वहां पे सब दिखेगा आप जो कर रहे हो, तो वहां पे आपको सभी चीजें अच्छे से ही करनी पड़ेगी, और अच्छी चीजें सस्ती नहीं होती। बट अगर आप ये कर पाते हो तो आपका कंपटीटर उसको कभी भी कॉपी नहीं कर पाएगा। एंड एट लास्ट कैन नॉट बी कॉपीड, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, यूनिक लोकेशन, यूनिक असेट्स, उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। जैसे कि ताज ग्रुप ऑफ होटल्स जो है मुंबई में है, जैसे कि डिज्नीलैंड मैंने आपको बताया जो पेरिस में है, ऑरलैंडो में है। सो दैट कैन नॉट बी कॉपीड एट ऑल। एंड यूनिक असेट्स। So this is all about what makes resources valuable. Now the next point is competency, distinctive competencies, core competencies, and competitive advantage, as well as sustainable competitive advantage. Now very basic, अगर हम बात करें competencies की, तो competencies क्या है? It's a kind of skill जो सभी के पास है। आपके पास भी स्किल है, आप गुजराती समझ रहे हो वो आपकी स्किल है, आप इंग्लिश समझ रहे हो वो आपके अंदर की एक स्किल है, आप चल सकते हो वो आपकी एक स्किल है, आप स्विमिंग कर सकते हो वो आपकी एक स्किल है, आप साइकिल चला सकते हो वो आपकी एक स्किल है। सो कॉम्पिटेंसीज मतलब बेसिक स्किल्स दैट एवरी ह्यूमन बीइंग पजेस। आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, तो वो बेसिक स्किल है। नाउ जब हम वो बेसिक स्किल को थोड़ा शार्पन करते हैं थ्रू ट्रेनिंग, through development, through work experiences, through life experiences, and वो स्किल को हम एनहांस करते हैं, तो वो जो हमारी कंपिटेंसी है वो कन्वर्ट हो जाएगी कोर कंपिटेंसीज में, जिसमें टाइम लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल एंड समथिंग लाइक दैट।
एंड लेटर ऑन जब आपकी वो शार्पन की गई हुई कॉम्पिटेंसी है जो कोर कॉम्पिटेंसीज में कन्वर्ट हो जाती है, और वो कोर कॉम्पिटेंसीज आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, एंड जिसकी वजह से आपके कस्टमर्स आपके प्रति अट्रैक्ट होते हैं, आपका सेल्स बढ़ता है, आपकी कंपनी आगे बढ़ती है, एंड वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटर्स को नहीं मिल रहे हैं। एंड वही एडवांटेजेस ऑन द बेसिस ऑफ योर कोर कॉम्पिटेंसीज आपको लॉन्ग टाइम तक मिलते रहेंगे, तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में। दिस इज द ब्रीफ अबाउट कॉम्पिटेंसीज, distinctive competencies, core competencies, competitive advantages, and sustainable competitive advantages. Now let's see in detail how it works. So the first one is competencies. Competencies are skills, things that you can do. कुछ भी है जो आपके अंदर है, साइकिल चलाना, समझना, लिखना, it can be anything. आज मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि मैं HDFC में जब था, आई वॉज देयर इन HDFC फॉर 6 years ऑलमोस्ट, तो मेरे अंदर सेल्स की इतनी ज़्यादा स्किल नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम एबल टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, मुझे ऐसा लगता था, बट मेरी कंपनी को ये नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि मेरी कंपनी में कई सारे नए एम्प्लॉयज आते थे, तो कंपनी का एक सेट ऑफ रिक्वायर्ड स्किल होता था। तो उसने क्या किया, मेरे को ट्रेन किया। संतोष नायर, अगर आपने नाम सुना है, काफी बढ़िया, उसको सेल्स का जिहादी बोलते हैं, सेल्स का बादशाह बोलते हैं उसको, संतोष नायर को। तो उसके अंडर उन लोगों ने कुछ एम्प्लॉयज को, जो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज थे, उसको ट्रेन किया। एंड लेटर ऑन मेरे अंदर स्किल थी, सेल्स की स्किल थी, नहीं था ऐसा नहीं था, बट उसको एनहांस करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए उसने मेरे को एक ट्रेनिंग में भेज दिया, एक वर्क एक्सपीरियंस में भेज दिया, एक लाइव एनवायरनमेंट में भेज दिया, एंड जिसकी वजह से मेरी जो कॉम्पिटेंसी, मेरी जो सेल्स की स्किल थी वो एनहांस हो गई, एक्सपांड हो गई, एंड मेरी स्किल, मेरी कॉम्पिटेंसी जो है वो कोर कॉम्पिटेंसीज में कन्वर्ट हो गई, एंड लेटर ऑन आई कैन इजीली सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू एनीवन। सो स्किल थी, सेल्स की स्किल थी, उसको एनहांस कर दिया, बढ़िया सेल्समैन बना दिया, एंड वहां पे मेरी कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप किया गया through different trainings, developments, workshops, and all those things. So competencies are skills, things that you can do, acquired through work experiences, life experiences, study or training. Now core competencies are capabilities that serves as a source of competitive advantages. So मैंने आपको बताया कि मेरे पास core competencies आ गई, मेरा सेल्स बढ़ने लगा, मेरी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी की कंपेयर में बढ़िया आगे बढ़ रही थी, तो मुझे क्या मिला, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ऐसा एडवांटेज जो मेरे कंपटीटर्स को, मेरे प्रतिस्पर्धी को नहीं मिल रहा था और मुझे मिल रहा था, तो आप उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बोल सकते हो। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हासिल करना है तो आपके पास कोर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, एंड दैट यू कैन गेन विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। An important special capability or expertise, especially that of business affording its sustainable competitive advantages. आज कोई भी बिजनेस होगा, अगर उसको मार्केट में बने रहना है तो उसके पास competitive advantages होने चाहिए, उसके पास core competitive advantages होने चाहिए, एंड सेम टाइम अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे बढ़िया हिटिंग करती है तो उसके पास सस्टेनेबल competitive advantage भी हो सकते हैं। एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे शेयर करता हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ शॉर्ट स्टोरी, तो आप लोग इसको शांति से सुनना, काफी अच्छी स्टोरी है, मेरी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है। आई वॉज देयर इन दिल्ली, मैं दिल्ली में गया था, माई स्टे वॉज देयर इन होटल ली मेरिडियन, काफी अच्छी होटल है। वहां पे मैं मिस्टर राजीव बजाज से मिला, जो बजाज ऑटो लिमिटेड या तो बजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसके करता हरता समाहरता है। तो तकरीबन मैंने 30 से 40 सेकंड उसके साथ मैंने बात की। बेसिकली इज फॉरेन पास आउट, फॉरेन से वो पास आउट है और बंदा काफ़ी बढ़िया है। तो मेरा क्वेश्चन था कि सर आप तो फॉरेन से पास आउट है, तो फिर भी आपको यहाँ पे बिजनेस में डिफिकल्टी क्यों हुई, ये मेरा क्वेश्चन था। अब मेरे क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूं कि राजीव बजाज से पहले उसके फादर जो थे वो बजाज ऑटो लिमिटेड हैंडल कर रहे थे, एंड वो संसद सभ्य भी थे, एमपी थे, एमएलए थे, जो भी थे वो थे, पॉलिटिकल बढ़िया उसको सपोर्ट मिल रहा था। 90s में
90s की ड्यूरेशन में उसकी कंपनी काफी बढ़िया चल रही थी। हमारा बजाज, शायद आप लोगों ने टैगलाइन भी सुनी होगी। उस टाइम पे बजाज वॉज द फर्स्ट कंपनी जो 999 रुपए डाउन पेमेंट में बजाज के स्कूटर्स दे रही थी। बजाज के स्कूटर्स, बजाज चेतक एंड ऑल जो है, वो कंपनी 999 रुपए डाउन पेमेंट में और 999 रुपए के इजी ईएमआई पे आपको स्कूटर दे रही थी। बजाज वॉज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च दिस थिंग्स। फिर भी एक टाइम पे बजाज ने आकाश को छू लिया था, ऊंचाइयों को छू लिया था, पर उसके बाद जो है वो बजाज के बुरे दिन स्टार्ट हुए। बजाज धीरे धीरे वाइंड अप होने की कगार पे आ गई। कंपनी जो है वाइंड अप होने वाली थी। कंपनी में स्ट्राइक हुआ, लॉकआउट हुआ, काफी सारी चीजें हुई। उस टाइम पे राजीव बजाज ने कंपनी की बागडोर संभाली और वो कंपनी जो है वो धीरे धीरे उसको ट्रैक पे लाने के एक्सट्रीम एफर्ट्स कर रहे थे। तो मेरा क्वेश्चन उसको ये था कि सर आप तो फॉरेन से पास आउट है, जहाँ पे प्रैक्टिकल स्टडीज के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में जो है बुकिश नॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, फॉरेन में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। 30% थियरी, 70% प्रैक्टिकल। इंडिया में 80% थियरी, 20% प्रैक्टिकल। तो मैंने बोला कि सर वहां पे आपके पास इतना प्रैक्टिकल नॉलेज था, फिर भी इंडिया में आपको इतना प्रॉब्लम हुआ। तो उसने मुझे बताया कि वॉट एवर द थिंग्स वी हैव गेन फ्रॉम द फॉरेन, तो वहां पे मार्केट सिचुएशन अलग थी, वहां का एनवायरनमेंट अलग था, इंडियन एनवायरनमेंट अलग था, इंडियंस के माइंडसेट जो है वो अलग थे। फिर यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी में आके कई सारी अलग अलग थियरीज जो है वो मैंने सीखी, मैंने डेवलप की, मैंने इम्प्लीमेंट की। ट्रायल एंड एरर बेसिस पे मैं गया एंड उसके बाद काफी सारे स्ट्रगल के बाद आज मैं यहाँ पे हूँ, या तो मेरी कंपनी जो है वो आज ऐसी ऊंचाइयों पे है। अब उसने वो स्ट्रगल क्या की वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने सबसे पहले आके देखा कि भाई इंडिया के लोगों को क्या चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया का मार्केट, एशिया का मार्केट जो है वो स्केल सेंसिटिव है, मतलब जो सस्ता मिलेगा उसको पहली प्रायोरिटी देंगे। तो उसने आके देखा कि भाई बाकी की जो कंपनीज है, हीरो है तो उसका CD डॉन है, CD 100 है, जो बाइक थे वो काफी बढ़िया चल रहा था। उसने ये भी एनालिसिस किया कि इंडिया में यंगस्टर यूथ जो है वो ज्यादा है, तो अब ये बजाज, ये मोपेड जो है वो चलने वाले हैं नहीं, तो यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा। तो उसने सबसे पहला बाइक लॉन्च किया BYK, जो सिर्फ 27,000 का बाइक था, पर वो मार्केट में नहीं चला, मुंह के बल गिर गए, बट फिर भी स्टॉप नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, उसने कावासाकी के साथ टाइप किया, कावासाकी बजाज, शायद आपको नाम याद होगा या तो आपने कहीं पे सुना होगा। फिर उसके साथ टाइप करने के बाद उन लोगों ने सबसे पहले लॉन्च किया बजाज बॉक्सर। 29,000 रुपीज में बजाज बॉक्सर लॉन्च किया, जो 90 किलोमीटर की एवरेज देता था, 1 लीटर में 90 किलोमीटर। तो वहां पे उन लोगों ने वो लॉन्च किया 29,000 में, तो वो चला, तो उसके जान में जान आ गई कि भाई चलो एक एक नब्ज तो हमारा हाथ में आई कि लोगों को क्या चाहिए, एंड नाउ इट इज ऑथेंटिकेटेड, ये प्रूव हो गया कि भाई यहाँ पे क्या चाहिए। तो बजाज ने वो बॉक्सर लॉन्च किया, बॉक्सर 80। फिर बजाज ने बॉक्सर MT लॉन्च किया जो 34,000 का था। फिर उसके बाद उसने अलग अलग डिस्कवरी, बजाज पल्सर भी उसी टाइम में लॉन्च किया, इंडिया का फर्स्ट स्पोर्ट बाइक। फिर वो पल्सर में कई सारे चेंजेस करते गए, पहले राउंड वाइजर वाला आता था, फिर उसने आगे से वो वाइजर चेंज कर दिया 150cc। फिर उसमें नई टेक्नोलॉजी लाया, दैट इज DTSI, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। बजाज इज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड हु केम अप विद दिस टेक्नोलॉजी, एक इंजन में 2 स्पार्क प्लग। सो दिस इज हाउ। उसके बाद पल्सर 150, 180, 220, देन विक्रांता, देन एवेंजर्स एंड मेनी मोर। उसके बाद उसकी जो साइकिल, उसकी जो ट्रेंड स्टार्ट हुई, आज तक स्टॉप नहीं हुई। बजाज RS 200, बजाज डोमिनार 400, बजाज डोमिनार 250, बजाज RS 400 जो अभी आने वाला है, एंड नाउअडेज बजाज जो है वो डोमिनार एंड उसके कुछ प्रीमियम बाइक्स है वो 70 कंट्रीज में सेल कर रही है। दिस इज द स्टोरी ऑफ बजाज। मैंने आपको 2-4 मिनट में पूरी स्टोरी बता दी, बट कहने का मतलब ये था कि आज बजाज के पास सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज है। ये कोविड गया, इतनी सारा रिसेशन गया, सब कुछ गया, बट फिर भी आज बजाज जो है वो एक ऊंचाइयों पे है। उसका मार्केट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है
वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रहा है एंड काफी धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडी मार्केट में सभी नए नए मार्केट में आगे बढ़ रहा है। आज उसके सेल्स का फिगर जो है वो रैपिडली बढ़ रहा है कि आज बजाज का फॉर एग्जांपल पल्सर जो है वो लास्ट मंथ में 6000 यूनिट सेल हुए थे, तो ये महीने में 6100 होंगे, अगले महीने में 6200 होंगे, 6 महीने के बाद 6500 हो गए। रैपिडली ग्रो हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज 6000 हो गया अगले महीने 5000 हुआ, ऐसा नहीं। उसका ग्राफ अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टेंटली नई ऊंचाइयों को छू रहा है। That's what in real sense core competencies, sustainable competitive advantages and competitive advantages that Bajaj is enjoying since last 1 decade. But yes, उसने स्ट्रगल भी इतना किया। वहां पे जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट हुआ था, अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता तो बजाज बंद ही हो जाता। आज बजाज का नामो निशान नहीं देखने को मिलता। But see the bounce back that they have done. Truly salute to them. Then core competencies are what give a firm one or more competitive advantages in creating and delivering values to its customers in its chosen field. क्या किया बजाज ने? अपने कस्टमर्स को वैल्यू प्रदान की ना कि भाई आपको कम पैसों में बाइक चाहिए, आपको अच्छा एवरेज वाला बाइक चाहिए, ले जाइए, वी आर प्रोवाइडिंग। लेटर ऑन जब उसके पास थोड़ा पैसा आया तो उसने बोला कि भाई आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, ले जाइए। एंड कस्टमर आर आल्सो हैप्पी विद द बजाज प्रोडक्ट्स। It is also called core capabilities or distinctive competencies. Now, 3 criteria है. It provides consumer benefits. Consumer को वहाँ पे benefit होगा. दूसरा जो है आपका कोई competitors उसको easily copy नहीं कर पाएगा. And तीसरा जो है कि अगर आपके पास core competencies है तो आप किसी भी मार्केट में चलोगे, आपकी सभी प्रोडक्ट्स जो है वो सभी मार्केट में चलेगी। जैसे कि बजाज इंडिया में सक्सेसफुल हो गया, नाउ 70 कंट्रीज में वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था कि बजाज की रिक्शा जो है वो लंदन में घूम रही है। एक मेरे पास वीडियो आया था, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। बजाज की रिक्शा जो सीएनजी या फिर ऐसी कोई रिक्शा थी वो लंदन में घूम रही थी एंड वो जो फॉरेनर था वही उसको चला रहा था। सो कोर कॉम्पिटेंसीज इट कैन बी लिवरेज वाइडली टू मेनी प्रोडक्ट्स एंड मेनी मार्केट्स। Now, sustainable competitive advantage is the focal point of your corporate strategy. The corporate strategy मतलब जहाँ पे आप सोच रहे हो डाइवर्सिफिकेशन का, अपने बिजनेस एक्सपेंशन का, मर्जर्स, जॉइंट वेंचर्स, एक्विजिशंस, अमालगामेशन, टेक ओवर्स, ये सब आप बोल सकते हो। ये सब जो है वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का ही भाग है। नाउ जैसे कि बालाजी की मैं बात करूं, बालाजी वेफर्स की, तो अभी राजकोट से स्टार्ट किया था, सिनेमा से स्टार्ट किया था, फिर राजकोट में आए, फिर सौराष्ट्र में आए, फिर गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा में आए। अब पैन इंडिया लेवल पे उसकी प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट मूव क्या होगा उन लोगों का? एशिया में जाएंगे, एशिया के बाद इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो जाएंगे। तो ये उसका मेन पॉइंट होगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी का। It allows the maintenance and improvement of your enterprise competitive position in the market. अगर आपके पास सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज है तो आप मार्केट में अपनी पोजीशन बनाए रख सकते हो, मार्केट पे अपनी पोजीशन को आगे भी ले जा सकते हो, बट आपके पास वो सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, एंड जिसके लिए कोर कॉम्पिटेंसीज जो है वो मेन सोर्स है। It is an advantage that enables business to survive against its competition over a longer period of time. Long term में आपको बना रहना है तो आपके पास sustainable competitive advantages होने ही चाहिए। Now 4 criteria for sustainable competitive advantages जो हमने already discuss कर लिए थे जब हमने first slide मतलब first PPT जो है वो start किया था कि आपके जो advantages है 4 criteria है वो valuable होने चाहिए, रेयर होने चाहिए, कोई कॉपी ना कर सके ऐसे होने चाहिए, और उसकी सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में नहीं होने चाहिए। आज केटीएम जो है वो मार्केट में चल रहा है क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में नहीं है। आज एप्पल जो है वो मार्केट में चल रहा है क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में नहीं है। आज इंडिया में जैसे कि अगर मैं बात बताऊं आपको, नेक्सॉन ईवी काफी सारी धीरे धीरे सेल हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक है, नेक्सॉन टाटा की है, तो वो मार्केट में सेल हो रही है, उसकी प्राइस भी ज्यादा है, तकरीबन 18-20 लाख उसकी प्राइस है। फिर है हाँ, तो वो ऑन रोड आप देखोगे तो 18 लाख के आसपास वो हो जाएगा, और 8 साल की वारंटी देते हैं बैटरी के ऊपर।
तो बढ़िया, तो मार्केट में और कोई कंपटीटर्स नहीं है, उसकी और कोई प्रोडक्ट भी नहीं, और जो है वो भी इतना एग्रेसिवली हिटिंग नहीं कर रहे, तो टाटा नेक्सॉन ईवी सेल हो रही है। सो नॉन सब्स्टिट्यूएबल, जिसकी वजह से टाटा को लॉन्ग टर्म का सस्टेनेबल कंपटीटिव एडवांटेज मिल रहा है। ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे टेस्ला को मिल रहा। So these are the 4 criteria for sustainable competitive advantages. And again the 5 criteria, that is unique. अब आपको अगर पूछा जाए कि explain 2, 3, 4, 5, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, explain few criteria of sustainable competitive advantages, तो उसमें आप unique, difficult to replicate, superior to the competition, sustainable and applicable to the multiple situations लिख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, valuable, rare, costly to imitate and non substitutable, ये भी लिख सकते हो। ये 9 में से कुछ भी आप लिख सकते हो। valuable मतलब 1, rare मतलब 2, costly to imitate 3, non substitutable 4, then unique 5, difficult 6, superior 7, sustainable 8 और applicable टू 9। तो ये 9 में से आप कुछ भी लिख सकते हो। सो सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के क्राइटेरियाज जो है उसमें ये यूनिक भी आएगा, यूनिक होना चाहिए, डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट मतलब कोई आसानी से कॉपी ना कर सके ऐसा, सुपीरियर टू कंपटीशन, मार्केट में अगर कंपटीशन है तो उसमें आप सुपीरियर होने चाहिए, आप इजीली सस्टेन कर पाओ ऐसा होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी एप्लीकेबल टू द मेनी सिचुएशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक ही सिचुएशन में आपको फायदा दिलाए, मार्केट में अगर सिचुएशन चेंज होती है तो आप वहां पे स्ट्रगल करो, आप वहां पे लॉस में आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो गाइस, एनी डाउट्स फॉर दिस? इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद द वैल्यू चेन एनालिसिस बाय माइकल पोर्टर, एंड देन आफ्टर विल गो विद द SWOT एनालिसिस। Guys, one important announcement, please don't leave the classroom until and unless I complete. Today is the last day to submit your group members name to Mr. Nakul. अगर आज के दिन में आज सबमिट नहीं करते हो तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं उसका ग्रुप मैं बना के दे दूंगा, एंड उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन जो है वो होगा, फिर उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप आज ही अपने ग्रुप मेंबर्स के नाम जो है वो नकुल को सबमिट कर दीजिए। मिनिमम मेंबर्स 7, मैक्सिमम 10। एक ग्रुप में मिनिमम 7 होने चाहिए और मैक्सिमम 10 होने चाहिए, ना ही 7 से कम ना ही 10 से ज्यादा। तो आज विदाउट फेल आप मिस्टर नकुल को अपने नाम जो है ग्रुप मेंबर्स के नाम और कंपनी के नाम सबमिट कर दीजिए। और ग्रुप 2 कंपनी आपको फाइनल करनी है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज के लिस्ट में से। गूगल में आप सर्च कीजिए फॉर्च्यून 500 कंपनीज, आपके सामने 500 कंपनी आ जाएगी, उसमें से कोई 2 कंपनी आपको लेनी है और वो 2 कंपनी का SWOT एनालिसिस आपको ग्रुप में मिलके करना है, एंड उसके बाद प्रेजेंटेशन की डेट्स जो है वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। सो गाइस, टुडे विदाउट फेल सबमिट योर नेम टू मिस्टर नकुल। नकुल, आप मुझे कल दे देना बेटा, जितने के आए हैं उतने के सबमिट कर देना, बाकी के मैं अटेंडेंस शीट में से देख के अपने आप में अलोकेट कर दूंगा। यस सर। Yeah, done. Chalo guys, that's it for the day. Please write down your enrollment number in the chat box. You may leave now. That's it for the day. Thank you so much. Enjoy your day. Take care. थैंक यू सर। आप लोग भी अपना नाम लिख दो। लिख दी।